قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ باغ عدن میں جب آدم اور حوا سے گناہ ہو گیا تو ان کی سب سے پہلی بدنی ضرورت، the first physical need of human being after falling in sin، گناہ میں گرنے کے بعد سب سے پہلی ضرورت ان کی جو جسم کی ضرورت تھی، لباس۔ پہلی ضرورت جو انسان کو محسوس ہوئی گناہ میں گرنے کے بعد وہ یہ تھی کہ ہم تو ننگے ہیں، ہمیں اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے کچھ چاہیے۔ آواز آئی ٹھنڈے وقت میں، آدم تو کہاں ہے؟ چھپ گیا، ڈھونڈتا ہوا جب پاس پہنچ گیا خدا تو آدم کو پتہ چل گیا کہ اب چھپنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ اب تو پکڑا گیا۔ تو کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ ننگا تھا۔ تو پھر خداوند نے جب اس کے منہ سے یہ بات سن لی، حالانکہ پتا تھا خداوند کو تو سب پتا، پوچھا پھل کھایا؟ ہاں، جو عورت تو نے دی اس نے مجھے کھلایا۔ پھر سانپ تک بات گئی، پھر لانتیں ہوئیں، اور پھر خدا نے انہیں عدن سے نکلنے کے لیے حکم جاری کر دیا کہ ان کو نکالو اور پہرا بٹھاؤ کہ کہیں واپس لوٹ نہ آئیں، زندگی کے درخت تک نہ پہنچ پائیں۔ لیکن باہر نکالنے سے پہلے ایک کام کیا۔ پیدائش کی کتاب کا 3 باب، خدا ہے نا، باپ ہے، ترس آ جاتا ہے اسے۔ 3 باب اور اس کی 21ویں آیت، اور لکھا ہے خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے، کیونکہ پہلے جو انہوں نے انجیر کے پتوں کی لنگیاں سی تھیں، وہ بنائی تھی، جوڑی تھی، ان کو کچھ ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی، کتنی کو دیر وہ کام آتی؟ فریش لیوز بھی ہوں تو 1 دن کے بعد سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، چلو 2 دن لے لیتے، 3 دن لے لیتے، اور اگر گرم موسم ہو تو شاید 1 دن میں ہی ڈرائیڈ، خشک۔ خدا نے انہیں باہر نکالنے سے پہلے چمڑے کے کرتے پہنائے۔ اب سوال یہ ہے چمڑا کہاں سے آیا؟ سوال ہے نا، کہاں سے آیا؟ وہاں قصور کوئی تھا تو نہیں؟ قصور جو شہر ہے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، وہاں تو ٹینریز ہیں، چمڑے کی فیکٹریز ہیں۔ کسی جانور کی کھال ہوگی نا، یہ اسی کو چمڑا کہتے ہیں نا، درختوں سے تو چمڑا نہیں نکلتا، نہ زمین سے نکلتا ہے، یہ کسی جاندار کے جسم کی ہائیڈ ہے، کھال ہے، چمڑا، سکن ہے، لیدر ہے۔ تو کہاں سے لیا ہوگا خدا نے؟ میں نہیں کہتا کہ اس نے کسی کو ذبح کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خدا اور اس کے بیچ کی بات ہے۔ وہ خدا کہ جو ساری کائنات کو کہنے سے بنا سکتا ہے، کیا وہ چمڑا نہیں بنا سکتا تھا؟ بنایا ہوگا اس نے، جیسے بھی، جس طرح سے بھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، جب آسمان پہ جائیں گے تو شاید آپ کے ساتھ مل کے خداوند سے پوچھوں گا، ذرا پہلی بات وہ تو بتا کہ وہ چمڑا کس جانور کا تھا۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ گوٹ کا تھا، بکری کا تھا، بیل کا تھا، یا وہ کسی اونٹ کا تھا، یا وہ کسی ٹائیگر کا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ وہ سکن تھی، وہ چمڑا تھا۔ وہ خدا کہ جو سب کچھ بنانے والا ہے، اس کے اختیار میں تھا، وہ حکم دیتا چمڑے کے کرتے بنے بنائے آ جائیں تو آ جاتے، آئے بھی ہوں گے۔ لیکن ایک بات اس میں سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ کسی کی جان جانے سے تمہارے بدن ڈھانپے جائیں گے، کسی کی کھال کے کھچنے سے، کسی کی کھال کے برباد ہونے سے تمہارے برہنگی، تمہاری نیکڈنس، تمہاری نیوڈیٹی، تمہاری ناپاکی، تمہاری شرمندگی مٹے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس جانور کی کھال تھی۔ خدا نے سچ مچ کسی کو ذبح کر کے کھال اتاری یا اس نے اپنے حکم سے بنا دی، لیکن جو نشانی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی جانور کا چمڑا ہوگا۔ وہ نشانی بتائی کہ کسی کی کھال
किसी की स्किन, किसी की जिल्द उतरेगी, कटेगी, फटेगी और तुम उसकी वजह से महफूज हो जाओगे। सो पहला गिफ्ट खुदा ने जो गुनाहगार इंसान को दिया, बड़ी लानतें पहले दे दी, फिजिकल जो गिफ्ट दिया, दैट वाज अ ड्रेस, लिबास, पोशाक, क्लोथ्स। और फटने वाले नहीं बना के दिए उनको कि पत्तों का था और जल्दी फट जाए, नहीं, चमड़े के बना के दिए, लेदर। बहुत मजबूत होता है ना लेदर। खुदा ने मजबूत उनको हाइट दी थी, उनको ड्रेस दिया था और फ्री में दे दिया। दैट वाज द फर्स्ट गिफ्ट, फर्स्ट फिजिकल गिफ्ट, पहला तोहफा, पहली बख्शिश जो खुदा ने गुनाहगार इंसान को दी, वो उनके बदन ढांपने के लिए उनको दिया हुआ लिबास था। थोड़े वक्त के लिए जरा गौर करेंगे कि बाइबल हमारी पोशाक, हमारे ड्रेसिंग, हमारी क्लोथ्स के बारे में क्या बताती है, कि ये क्या जाहिर करते हैं। एक शॉल है, एनीवन वॉलंटियर, इफ अ लेडी कम्स, कोई बहन आ जाए तो अच्छा होगा। चलिए, हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जब इज्जत देने लगते हैं, हम उनको शाल उड़ा देते हैं। बैठिए, क्या कहते हैं इसे हम, मैं जिस कल्चर से हूं, कहते हैं धी भैन आइए दा सिर ढक के कलना है, सर ढांप के भेजना है। इट्स कंसिडर्ड द गिफ्ट। पैदाइश की किताब में 24वें बाब में लिखा है कि जब अब्राहम ने अपने नौकर अलीआजर को भेजा कि जाकर मेरे लोगों में से मेरे बेटे इजहाक के लिए बीवी तलाश कर, तो वो बहुत से तोहफे लेकर गया। और जब रिबका मिल गई, जब उसके घराने से बात तय हो गई, तो निकाल के सोना और चांदी और फिर कीमती लिबास निकाल के उसको तोहफे में दिए। बरी का कॉन्सेप्ट हमारे अपने नहीं बल्कि बहुत कदीम से है। वरी जी ने आखी दी है, ब्याह पे जो बनते हैं ना शादियों में, दूल्हे की तरफ से दुल्हन के जोड़े बनते हैं, सिंगार का सामान बनता है, जेवरात बनते हैं। सो पोशाक जाहिर करती है, पहली बात ये नेमत है, ये बरकत है, ये गिफ्ट है और ये एक पोजेशन है, मिल्कियत है। ये मिल्कियत को जाहिर करता है, हमारी प्रॉपर्टी को जाहिर करता है, हमारे पोजेशन को जाहिर करता है। किस तरह से बनी इस्राइल को खुदा ने हुक्म दिया था, खरूज की किताब का 22वां बाब है, कि तू अपने किसी भाई की पोशाक, उसका लिबास गिरवी ना रखना। गिरवी पता क्या रखा जाता है पैसे लेने के लिए? कीमती चीज। तो खुदा ने बनी इस्राइल को मना किया कि तू अपने भाई का पोशाक, उसका लिबास, उसके कपड़े गिरवी ना रखना। यानी बहुत कीमती चीज है कपड़े, मिल्कियत है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी जायदाद है। सो बाइबल में कपड़े, लिबास, पोशाक, क्लॉथ्स, ड्रेसिंग, ये जाहिर करता है गिफ्ट्स, तोहफे, ब्लेसिंग्स, बरकतें, पोजेशंस, जायदाद, हमारी मिल्कियत, हमारी अमलाक। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने पहाड़ी आवाज में कहा कि अगर कोई नालिश करके यानी मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे तू। मुकदमे पता किन चीजों पे होते हैं? जायदादों पे, प्रॉपर्टीज पे, फैक्ट्रियों पे, जमीनों पे, घरों पे, दुकानों पे। लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा अगर कोई मुकदमा करके तेरा कुर्ता ले ले, यानी लिबास बहुत कीमती चीज है हमारे लिए। किसी के कपड़ों पे दावा कर देना, मुकदमा कर देना कि मुझे इसके ये लिबास चाहिए। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि खुदावंद यीशु ने कहा अगर कोई मुकदमा करके तेरा लिबास ले लेना चाहे, मतलब इतनी जायदाद है, ये जायदाद की तरह है ये लिबास हमारा, हमारी पोशाक। तो ये बहुत
कीमती चीज है, तोहफा है खुदा की तरफ से, बख्शिश है खुदा की तरफ से। लोग, ईमानदारों ने दूसरों को कपड़े गिफ्ट के तौर पर दिए, तोहफे के तौर पर दिए, और फिर ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद को जाहिर करता है। फिर हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त है। ये हम लिबास से लोगों को पहचानते हैं कि ये कौन है। अभी नौजवान हमारे बीच से गुजरकर सामने आ रहा है। इसने एक मखसूस कलर का कोट पहना हुआ है। टर्न होगा, आप देखेंगे। क्या लगता है ये कोट किन का होता है? डॉक्टर्स का। पहचान है, लिबास हमारी पहचान है। पैदाइश 38वां बाब और 14वीं और 15वीं आयत। यहूदा की बहुत ही तमर, उसने रंडापे का लिबास यानी बेवगी का लिबास उतारा। हिंदी फिल्मों में देखा होगा, सफेद साड़ी, सफेद लिबास जिस औरत ने पहना हो, क्या समझा जाता है उसे? बेवा हो गई है। सो पुराने जमाने से, ये बुजुर्गों के जमाने से रिवायत है कि जो औरत बेवा हो जाती थी उसका मखसूस लिबास हो जाता था, पहचानी जाती थी, ये बेवा है। समूएल की दूसरी किताब और 13वां बाब है और 18वीं आयत है। बादशाह की बेटियां जो कुंवारी होती थी, उनकी पोशाक पूरी कौम से अलग होती थी, वो पहचानी जाती थी, ये कुंवारी शहजादी है। उसकी पोशाक, उसकी पहचान होती थी, आइडेंटिटी होती थी वो। मैंने जो लिबास पहना हुआ है, कोई भी कलीसिया में शख्स आएगा तो पहचान लेगा कि खुदा का खादम आपके बीच में कौन है। इसीलिए हम ये लिबास पहनते हैं, पहचान के लिए। पुलिस जब यूनिफॉर्म में है तो पहचान है, यूनिफॉर्म के बगैर है तो एक ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल इंसान है, कोई पता नहीं है कि वो कौन है। सो लिबास बाइबल के मुताबिक भी और हमारे मुआशरे में भी हमारी पहचान बनता है, हमारी आइडेंटिटी होता है। यहां तीसरा पहलू आ जाता है, हमारा स्टेटस, हमारा रुतबा, हमारी हैसियत। हमारा लिबास हमें बताता है कि हम कैसे हैं। अच्छा सूट बूट पहना हो तो हमारी जरा वैल्यू होती है, लेकिन अगर कोई रफ कपड़ों में हो, जिनको इस्त्री भी ना किया हो, जिन पे मैल और धब्बे चढ़े हों, तो हम उसे क्या समझते हैं कि ये छोटी क्लास का आदमी है। याकूब के खत में 2 बाब और पहली 4 आयत में लिखा है कि जब कोई खूबसूरत लिबास वाला आ जाता है तुम उसकी इज्जत करते हो क्योंकि उसका स्टेटस समझते हो, और जब कोई मैले कुचैले कपड़ों वाला आता है तो तुम समझते हो कि वो छोटा आदमी है, हमें उसकी इज्जत नहीं करनी। रुतबे में फर्क आ जाता है। पैदाइश 37वां बाब और 3री आयत। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को एक मल्टी कलर्ड कोट दिया था, एक बू कलमून कुबा दी थी, जो 11 दूसरे बेटों को नहीं मिली थी, एक बेटे को दी थी। वो उससे जेलस हो गए थे, उससे हसद करने लगे थे। वजह यह थी कि उस मुआशरे में जिसको वो रंगीन लिबास दिया जाता था, वो अपने घराने में अपने बाप के बाद विरासत में सबसे ऊंचे मर्तबे पर जाना जाता था। वो अपने बाप की गद्दी का वारिस समझा जाता था। वो अपने बाप की जगह पे नया उभरने वाला कबीले का सरदार समझा जाता था। तो ये हैसियत होती थी। और फिर शमूएल की पहली किताब 18वां बाब और 4थी आयत। यूनतन ने दाऊद को अपनी कुबा उतार के दे दी थी क्योंकि वो वली अहद की कुबा थी, वो क्राउन प्रिंस की कुबा थी, वो नए आने वाले साउल के बाद जो बादशाह बनने वाला था उसकी पोशाक थी। सो हैसियत को जाहिर करती है हमारी पोशाक। हम क्या हैं?
शादी ब्याह में जाएं, किसी मीटिंग में जाएं तो जरा सूट बूट और अच्छी पोशाक पहन के जाते हैं, जरा इंप्रेशन अच्छा होता है, हमारे स्टेटस का पता चलता है। और मैले कुचाले और गंदे कपड़े हों तो समझा जाता है कि ये बंदा छोटा है। सो हमारी पोजीशन हमारे स्टेटस को जाहिर करती है हमारी पोशाक, और फिर हमारे ऑनर को, हमारी इज्जत को जाहिर करती है पोशाक। अभी चादर ओढ़ाई मैंने बेटी को, इज्जत बन जाती है। पता क्या होता है हमारे मुआशरे में, जब किसी के सामने तरला मिन्नत करना हो तो लोग अपनी पगड़ी का वास्ता देते हैं। और ये अजरक सिंध में बहुत बड़ी इज्जत है। इसको आप अपने बॉडी के लोअर पोर्शंस में नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको टॉप में से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इज्जत है। और पगड़ी हमारे पूरे एशियन कल्चर में इज्जत की अलामत समझी जाती है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खरूज 28वां बाब 2री आयत में और फिर 40वीं आयत में, कि हारून और उसके बेटों के लिए तू पगड़ियां बनाना जो उनकी इज्जत के लिए होंगी, उनकी इज्जत होगी। सो हमारी पोशाक हमारी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होते, हमारे ऑनर होता है। अक्सर डायलॉग सुना होगा कि सर नंगा कर दिया, सर से चादर छीन ली। सिर्फ हमारे इन मुआशरों में, हमारे देहात में ये नहीं है, बल्कि इस्राइल में भी उन्होंने एक जो कानून की अलग से किताब जो समाजी सोशल लॉ की बनाई थी, मिशना, उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई शख्स किसी राह चलती औरत का सर नंगा कर दे, उसके सर से कपड़ा उतार दे, उसकी चादर खींच ले, तो उसके लिए बड़ी सख्त सजा थी उसमें। सो हमारे सर के कपड़े या कभी कभार हम अपने कंधे पे जो चादर या कपड़ा रखते हैं, वो हमारी इज्जत को जाहिर करता है। हमारी पोशाक हमारी रिस्पेक्ट, हमारे ऑनर, हमारी इज्जत को जाहिर करता है। और फिर पोशाक हमारी अथॉरिटी को, हमारे इख्तियार को जाहिर करती है। पोशाक बता देती है कि ये बादशाह चला आ रहा है। पोशाक बता देती है कि ये 3 स्टार जनरल है। पोशाक बता देती है कि इस शख्स का रुतबा और ओहदा क्या है। पोशाक बता देती है कि इस शख्स का इख्तियार, उसकी अथॉरिटी किस हद तक है। हमारी पोशाक हमारी अथॉरिटी, हमारे इख्तियार को जाहिर करती है। पैदाइश 39वां बाब और 41वीं आयत से 43वीं आयत तक फिरौन ने यूसुफ को कतानी लिबास पहनाया और उसको सोने का तौक पहनाया, अपने रथ पे सवार किया और मुनादी कराई कि हर कोई इसके आगे झुक जाए। वो जो पोशाक उसने पहनी थी वो शाही पोशाक थी। दानिएल बाब नंबर 5 और आयत नंबर 7 में बादशाह ऑफर करता है कि जो मेरे इस मुअम्मे को हल करेगा, इस मुश्किल को हल करेगा, जो दीवार पे लिखा गया उसे हल करेगा, तो उसे खिलात दी जाएगी, उसे शाही पोशाक दी जाएगी, अथॉरिटी दी जाएगी, और वो 3रे दर्जे का हाकिम होगा मुल्क में। बादशाह, उसकी मां और फिर वो शख्स 3रे दर्जे का, 3rd स्टेटस होगा उसका किंगडम में, 3रे नंबर पर होगा वो। सो पोशाक जाहिर करती है अथॉरिटी और इख्तियार को। और अमाल की किताब में 12वां बाब 21वीं आयत, बस हेरोदीस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा। शाही पोशाक उसकी अथॉरिटी को जाहिर करती है। तो लिबास अथॉरिटी इख्तियार को जाहिर करता है। फिर पोशाक है जो हमारी खिदमत को जाहिर करती है। इट रिफ्लेक्ट्स द सर्विस वी डू फॉर गॉड। या हम किसी और की सेवा करते हैं या हम खुदा की सेवा करते हैं, हमारी पोशाक बताती है
میں نے گزارش کی میرا لباس بتاتا ہے کہ یہاں خدا کا خادم میں ہوں. بنی اسرائیل میں چوغا پہن کے اور سر پہ پریئر شال لے کر جو راستوں میں نظر آتے لوگوں کو وہ خدا کے خادم ہوا کرتے, کاہن ہوا کرتے تھے. سو ان کی پوشاک بتاتی تھی کہ وہ خدمت گزار ہیں, وہ خدمت کرتے ہیں, وہ سروس کرتے ہیں, وہ منسٹری کرتے ہیں. سو پوشاک بتاتی ہے ہماری خدمت کو, ہمارے فنکشن کو جو خدا نے ہمیں زندگی میں دیا ہوا ہے, جو ذمہ داریاں خدا نے ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہیں. خروج 28واں باب پورا پڑھیں تو بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو حکم دیا کہ تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے اسپیشل پوشاک, ان کے لیے لباس تیار کر تاکہ ان کی پہچان ہو, ان کی زینت ہو, ان کی عزت ہو. اور حزقیل باب نمبر 44 میں چیپٹر 44, حزقیل چیپٹر 44 ورس 19, اور ان کی پوشاک کو جو کاہن استعمال کرتے تھے اسے کہا گیا خدمت کی پوشاک, خدمت کا لباس. سو ہماری پوشاک ظاہر کرتی ہے کہ ہماری خدمت کیا ہے. ہم خدمت کرتے ہیں, ہم خدا کی سروس کرتے ہیں. پھر پوشاک ظاہر کرتی ہے کہ انسان دکھ سے, کرب سے, تلخ باتوں سے گزر رہا ہے, بٹرنس سے, تلخیاں ہیں زندگی میں. پیدائش 38واں باب 14ویں سے 15ویں آیت میں نے پہلے بھی تمر کا ذکر کیا. وہ رنڈاپے کا لباس, وہ بیوگی کا لباس پہنے ہوئے تھے. ہندوستانی کلچر میں جو انڈین ہیں, اسپیشلی ہندو ہیں, ان میں ان کا لباس بتا دیتا ہے کہ یہ عورت تلخ زندگی گزار رہی ہے, کہ اس کا شوہر مر چکا ہے. بھکاریوں کی پوشاک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان پہ پیچز لگے ہوتے ہیں, ان کی پوشاک آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ مانگنے والا فقیر ہے, یہ جھولی پھیلا کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے. ان کے کندھے پہ ایک جھولا ہوتا ہے, ان کی پوشاک, ان کا حلیہ, ان کی زندگی کی تلخیاں بتا دیتا ہے. بٹرنس, تلخیاں زندگی کی, تلخ یادیں, تلخ ماضی جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشکلات آ چکی ہیں, بہت دکھ آ چکے ہیں ہماری زندگی میں, وہ لباس ہمارا اسے ظاہر کرتا ہے. اور پھر لباس ظاہر کرتا ہے کہ دکھ میں ہے. ایک برٹشر یہاں بحرین میں اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے خاندان کے لوگ آئے تو بڑا ایکسائٹڈ تھا. آئی گاٹ دا بیسٹ ڈیل ٹو گیٹ اے بلیک سوٹ. بلیک سوٹ پہنتے ہیں لوگ ماتم کے لیے. سو پوشاک ظاہر کرتی ہے, لباس ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص ماتم میں ہے, اس پہ دکھ ہے. گوروں کا یہ ایک ان کی روایت ہے کہ وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں جنازوں پہ ماتم کرنے کے لیے. ماتم کے لیے پرانے عہد نامے میں ٹاٹ کا لباس تھا. آستر میں 4 باب ہے, مردکی نے, اس کے لوگوں نے, یہودیوں نے ٹاٹ اوڑا, ماتم کا لباس پہنا تھا. یرمیا میں قوم کے لیے کہا ماتم کا لباس, ماتمی لباس. یونا کے زمانے میں جب وہ گیا نینوا کے بادشاہ اور لوگوں کو بتایا کہ خدا برباد کرنے کو ہے, انہوں نے ٹاٹ اوڑا اور ماتم کیا. سو ہمارا لباس جو ٹاٹ کا لباس تھا یا کالا لباس ہوتا ہے, وہ ہمارے ماتم کو, ہمارے رونے کو, ہماری آہوزاری کو, ہمارے دکھ کو, ہمارے رنج کو, مورننگ, لیمنٹ اور گریف کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر ہمارا لباس, بائبل بتاتی ہے کہ ہمارے گناہ ایسے ہیں جیسے ہمارے بدن پہ ناپاک لباس ہے. میلے کچیلے کپڑے, گندگی سے بھرا لباس بائبل میں ظاہر کرتا ہے بد کرداری کو اور گناہ کو. گناہ کی تاریکی اور سیاہی اور داغ اس پر ہیں. ہمارا لباس ہمیں گناہ, بد کرداری کا شکار ظاہر کرتا ہے. زکریا میں 3 باب اور 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ
यशुआ सरदार काहिन था तो उसको कहा गया तेरे मैले कुचैले कपड़े यानी तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर कर दी गई और तुम्हारी नेकियां मेरे सामने ऐसे हैं जैसे नापाक लिबास है। सो हमारी पोशाक हमारे गुनाह को, हमारी बदकिरदारी को जाहिर करती है। और ये बाइबल बताती है कि ये हमारी पोशाक, हमारा लिबास किस किस चीज को जाहिर करता है। और जब बनी इस्राइल ने सुना कि वो जो मौजज़े करता था, वो जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो जो कोड़ियों को पाक करता है, वो जो अंधों को बिनाई देता है, वो जो लंगड़ों को चलने की तौफीक देता है, वो जो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है, वो आ रहा है। तो निकले, देखा गधे के बच्चे पे बैठा है। जकरिया की किताब याद आ गई। वो देख तेरा बादशाह गधे पर, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार आता है। तो उन्होंने अपनी पोशाकें उसके सामने फैला दी, अपने गिफ्ट्स। विल यू प्लीज कम। जो उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं वो उतार के उन्होंने उसके रास्ते में बिछा दिए। उन्हें जो पोजेशन मिले थे वो उन्होंने उसके रास्ते में बिछा दिए कि हमारी बरकतें, हमारी नेमतें, हमारी जायदादें, हमारे कीमती असासा, हमारे एसेट्स, हमारे पोजेशंस तेरे रास्ते में निछावर हैं। You are the Lord of my blessings, my gifts and my possessions. तू मेरे तोहफों का, तू मेरी नेमतों का, तू मेरी बरकतों का और तू मेरी जायदाद का भी खुदावंद और बादशाह है। फिर वो जाहिर करता है कि तू मेरी शनाख्त का भी बादशाह है। हमारा लिबास जाहिर करता है हमारी शनाख्त को, हमारी आइडेंटिटी को। मेरी पोशाक जो कुछ भी है वो मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है। दुनिया में मेरी शनाख्त है, मैं अपनी शनाख्त उतार कर तेरे कदमों में फैला रहा हूं, क्योंकि तू मेरी पहचान का, मेरी शनाख्त का, मेरी जात का, मेरे वजूद का बादशाह और खुदा है। तीसरा, तू मेरे स्टेटस का, तू मेरे रुतबे का, मेरे मर्तबे का, मेरे मुकाम का बादशाह है। तू मेरे मुकाम का खुदा है। मैं दुनिया में जितनी बड़ी मर्जी हैसियत का हूं, तू उससे बढ़कर है। मेरी हैसियत, मेरा रुतबा, मेरा स्टेटस, मेरी पोजीशन तेरे सामने जेर है। तू उस पे भी बादशाह और हुक्मरान है। मेरी हैसियत, मेरी पोजीशन, मेरा स्टेटस सब तेरे कदमों के नीचे है। जब आ रहा है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है दाऊद की बादशाहत। वो हमारी इज्जतों से बढ़कर है, वो हमारे रिस्पेक्ट और हमारे ऑनर से बढ़कर है। हमारी इज्जत मुकाम मुआशरे में चाहे जैसा भी हो, हमारी पग, वो सब खुदा के सामने जेर हैं। मैं खुदावंद तेरे सामने बिल्कुल कुछ नहीं हूं, खाक हूं। मेरी इज्जत तेरे कदमों के नीचे है। और फिर लोगों ने जब पोशाक उसके सामने फैलाई तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को उसके सामने जेर किया। खुदा का कलाम फरमाता है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और मुकाशफा की किताब बताती है कि उन्होंने अपने ताज बर्रे के सामने रख दिए।
बादशाहों की पोशाकें उसके कदमों के नीचे होंगी। हमारा इख्तियार, हमारी अथॉरिटी, चाहे कुछ भी हो, वो हमारे खुदावंद के कदमों के नीचे होनी चाहिए। और फिर हमारी खिदमत चाहे कुछ भी है, उसने हमें अपनी खिदमत में जो मुकाम चाहे मर्जी दे रखा है। चाहे मैं एक अदना सफाई करने वाला चर्च में खिदमत गुजार हूं, या मैं पोप हूं, सरदार काहिन हूं, या दरवाजे पे खड़ा रहने वाला एक अदना सा वर्कर हूं, मेरी खिदमत तेरे कदमों के नीचे है। मेरा मुकाम तेरे कदमों के नीचे है। मेरी कोशिशें, मेरी मेहनतें तेरे कदमों के नीचे हैं। पोशाकें जमीन पे खुदावंद के सामने फैलाना यह जाहिर करता है कि हम खिदमत में जितने बड़े मर्जी हो जाएं, हम तेरे सामने ज़ेर हैं। और फिर हमारी जिंदगी में तलखियां चाहे जितनी भी हों, हमारे माजी के दुख चाहे कितने भी हों, हमारी मुसीबतें चाहे जितनी भी हों, हमारी मजबूरियां चाहे जितनी भी हों, भिखारी की तरह, उस अंधे भिखारी की तरह खुदावंद ने जिसे आवाज दी से मेरे पास लेकर आओ, उसने क्या किया? अपना कपड़ा वहीं फेंक कर खुदावंद के पीछे भागा कि मुझे आज से इसकी जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में, माजी में, पास्ट में कोई मिसहैप्स हो चुके हैं, कोई तलखियां हो चुकी हैं, आप किसी बात पे दुखी हैं, परेशान हैं, खुदा के कदमों में उसे डाल दीजिए। अपने उस तलखी को खुदा के कदमों में डाल दीजिए। खुदावंद उसे तब्दील करने की ताकत रखता है। जब वो अंधा भिखारी मरकस की इंजील में 10वें बाब में जिसका जिक्र है, उसने अपना कपड़ा फेंका और खुदावंद के पीछे भागा। उसको उस कपड़े की दोबारा जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा था कि जिसमें वो भीख मांगा करता था, जिसमें वो लोगों से अपने लिए खैरात मांगा करता था। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसके पास जा रहा हूं जो मुझे अच्छा कर देगा, जो मुझे नॉर्मल कर देगा, जो मुझे बीना कर देगा। अब मुझे अपने तल्ख माजी से, मजबूरियों से जुड़े रहने की जरूरत नहीं है। अपनी तलखियां खुदावंद के कदमों में डाल दें, अपने दुख खुदावंद के कदमों में डाल दें। और फिर हमारा मातम, हमारा रंज, कोई मर जाए, कोई हमसे बिछड़ जाए, हम बहुत दुखी, उदास होते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी में दोबारा कोई खुशी नहीं आ सकती, हमारी जिंदगी बहाल नहीं हो सकती। आप अपने मातम के निशान को, अपने मातमी पोशाकों को खुदावंद के कदमों में डाल दीजिए। वो आपके मातम को खुशी के नगमों में तब्दील कर सकता है। अगर वो बेवा रूत को बोएज दे सकता है, तो वो किसी की जिंदगी में भी खुशी, शादमानी और बहाली ला सकता है। वो जो तल्ख थी, उसने कहा, नौमी ने कहा कि मुझे नौमी ना कहो बल्कि मारा कहो, कड़वाहट कहो मुझे, मेरी तलखियां बहुत हैं। फिर बाद में कहती है, मुबारक है वो खुदा जिसने मुझे आज के दिन कराबती के बगैर ना छोड़ा, बोएज जैसा बेटा मुझे मिल गया। खुदा हमारी मातम को, हमारे दुख को, हमारे रंज को अगर हम उसके कदमों में उसे फैला दें तो उसे तब्दील कर सकता है। और फिर हमारे गुनाह जो तारीकी से भी ज्यादा गहरे हैं, स्याह हैं, जिसके धब्बे इस कदर ज्यादा हैं कि वो किसी डिटर्जेंट से नहीं धुलते, वो किसी सर्फ से नहीं धुलते, वो किसी पीर के छड़ियां मारने से नहीं जाते, वो कई चढ़ावे चढ़ाने से नहीं जाते। सिर्फ जाते हैं तो वो यस्सु के कदमों में अपने गुनाह उंडेल देने से जाते हैं। और वो कहता है कि तू अपना सब कुछ ला के मेरे कदमों में डाल, मैं तुझे नया बना दूंगा। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। जो मसीह यस्सु में है वो नया मखलूक है, ही इज द न्यू क्रिएशन।
تو جب ہم یسوع کے یروشلم میں بادشاہ کے طور پر داخلے کو یاد کرتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھیں، ہمیں اپنی پہچان اس کے قدموں میں رکھنی ہے، ہمیں اپنا سٹیٹس اس کے قدموں میں رکھنا ہے، ہمیں اپنی عزت اس کے قدموں میں رکھنی ہے، ہمیں اپنا اختیار اس کے قدموں میں رکھنا ہے، ہمیں اپنی خدمتیں اس کے قدموں میں رکھنی ہیں، ہمیں اپنے تلخ یادیں، وہ دکھ اور رنج جو ہمیں بہت ستاتے ہیں، انہیں خداوند کے قدموں میں رکھنا ہے، ہمیں اپنے ماتم کو، جن چیزوں پہ ہم ماتم کرتے ہیں انہیں خداوند کے قدموں میں رکھنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو اس کے قدموں میں رکھ دینا ہے۔ ان سب چیزوں پہ ہمیں اسے اپنا بادشاہ بنا لینا ہے کہ تو ان سب چیزوں کا مالک ہے، تجھ سے ان سب چیزوں پہ جب تیرے قدم چل رہے ہیں تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے ان پر فتح پا لی ہے، تو ان پر غالب آ گیا ہے، تو نے انہیں جیت لیا ہے۔ سو ہم یہ کچھ 9 باتیں ہیں، ہم انہیں یاد رکھتے ہوئے خداوند کے قدموں میں رکھیں، اپنی زندگی کے ان ایریاز میں اس کو بادشاہ کے طور پر ان پہ چلنے دیں، وہ تبدیل کر دے گا، وہ تلخیوں کو خوشی میں بدل دے گا، وہ ماتم کو نغموں میں تبدیل کر دے گا، وہ ہمارے گناہوں کو راست بازی میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے ہماری زندگی کے ہر پہلو میں in every area of our life اس کی بادشاہت قائم ہو، ہم اسے بادشاہ مانیں، کیونکہ لوگوں کا اس کے قدموں میں پوشاکیں ڈالنا ظاہر کرتا ہے ان 9 باتوں کو۔ آئیے میں بھی اور آپ بھی آج ہی سے یہ اس کے سامنے پھیلا دیں، کیا میرے بادشاہ تو ان پہ گزر اور مجھے اپنے جیسا بنا دے، مجھے راست بنا دے۔